Good morning, my dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. I hope you all have given your exam well. Now, from today, your lectures are starting, and this one is your accountancy lecture number 30. From this lecture, I am going to start chapter 9, that is books of original entry journal. Some topics of this chapter I have covered in the previous lectures which were there before your exam. Cash discount, trade discount, I have explained in that lecture. Trade discount is the discount which is given to the wholesaler of and at the time of purchase, and it is only given when the goods are purchased on in bulk. Cash discount is the discount when prompt payment is made. Then cash discount is given to the customer, and it is given only when cash payment is made. इज इट क्लियर बेटा? तो कैश डिस्काउंट और क्रेडिट डिस्काउंट मैंने आपको बताया था, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आई एम स्टार्टिंग इन दिस लेक्चर. न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10. ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स, ये माइनस हो जाता है फ्रॉम द लिस्ट प्राइस, बट कैश डिस्काउंट इज शोन इन द बुक्स. कैश डिस्काउंट इफ गुड्स आर परचेज देन डिस्काउंट इज रिसीव्ड, एंड इफ गुड्स आर सोल्ड देन डिस्काउंट अलाउड इज देयर. ठीक है बेटा? तो कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब आपका कैश पेमेंट होता है गुड्स का, और ये कस्टमर्स को दिया जाता है एट द टाइम ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट. और ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन एट द लिस्ट प्राइस टू द होलसेलर व्हेन दे आर परचेजिंग गुड्स एट in bulk, whether they are purchasing it in cash or in credit basis, but it is given to the wholesaler. See question number 7 beta. Past journal entries for the following transactions. In your Zoom class I have explained you the format of journal entry, and in the notes also it was there. I hope you have completed previous lectures, previous notes of this chapter. Journal entry. Journal entry is the first book in which transactions are recorded from the source document. वो book जिसके अंदर transaction सबसे पहली बार record करते हैं from the source document, it is known as journal. And journal जो है आपका, journal के through आप entries को post करते हैं. Journal is based on the same rule, that is nominal account rule, real account rule, and personal account rule. Personal account is debit the receiver, credit the giver. The account is of person, institution, firms, organization. Real account is the account of all assets which are there in the business in the form of monetary terms. और इसका रूल है आपका, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. फॉर एग्जांपल कैश, डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब किसका पार्ट है आपका? कैश. इसका दैट इज़ द पार्ट ऑफ रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. देन नॉमिनल अकाउंट, द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम एंड गेन इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है बेटा? नॉमिनल अकाउंट, द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. उसी बेसिस पे आपके जनरल एंट्रीज में अकाउंट वो पोस्ट होते हैं. सी क्वेश्चन नंबर 7 बेटा. 5 जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. 2020 January 6 sold goods to Muskan of the list price of 2 lakh at trade discount of 20%. Muskan returned goods of the list price of rupees 5,000 January 8. Then January 15 received from Muskan the full payment under a cash discount of 4%. One thing beta, list price is the price which is there बिफोर डिस्काउंट. लिस्ट प्राइस वो प्राइस है जो डिस्काउंट से पहले की प्राइस, दैट इज़ लिस्ट प्राइस. उस पर ट्रेड डिस्काउंट चार्ज होता है. अगर लिस्ट प्राइस पे कोई गुड्स रिटर्न हो रहे हैं तो उस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके तभी गुड्स को रिटर्न करेंगे. जैसे आपके 2 जनवरी 8 में बोल रखा है, मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000. तो गुड्स आपका लिस्ट प्राइस 5,000 है, उसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट जो सेल के टाइम पे लगा है वो माइनस हो जाएगा. देन 4,000 के गुड्स रिटर्न होंगे. इज इट क्लियर? नाउ सी द एंट्रीज. सी जनरल एंट्री जनवरी 6. आपको मैंने आपको अभी बताया था कि टोटली किसके ऊपर बेस्ड है ये आपका. इट इज़ बेस्ड ऑन योर रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट रूल्स पे बेस है. सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 2 लाख. गुड्स सोल्ड करा है मुस्कान को, इट मीन्स मुस्कान इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स. और सेल्स अकाउंट इज़ द, सेल्स अकाउंट में क्या आपका इनकम हो रही है, सेल्स अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. क्रेडिट और इनकम एंड गेन के रूल से, और मुस्कान रिसीव करे तो मुस्कान का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. सी एंट्री. मुस्कान डेबिट टू सेल्स अकाउंट रुपीज़ 1,60,000. 1,60,000 क्यों? क्योंकि गुड्स को सोल्ड करा है 20% रेट डिस्काउंट. 2 लाख इज़ द लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस इज़ 2 लाख. उस पर डिस्काउंट चार्ज हो गया 20%, तो आपका 40,000 डिस्काउंट चार्ज हो गया, तो 1,60,000 उसका प्राइस हो गया. दैट इज़ हियर मुस्कान डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,60,000. 1,60,000. देन सी द सेकंड. मुस्कान रिटर्न गुड्स, मैंने अभी आपको बताया था लिस्ट प्राइस पे उसने 5,000 का गुड्स रिटर्न किया है. सी जनवरी 8 वर्किंग नोट्स में इट इज़ मैंशन. Sales return account debit to
सी बेटा मुस्कान रिटर्न करा है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब गुड्स रिटर्न हो गए तो लिस्ट प्राइस पे रिटर्न करा है तो 5000 में से ट्रेड डिस्काउंट 1000 माइनस हो जाएगा। 4000 के गुड्स रिटर्न हो गए तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान 4000। ठीक है। देन उसके बाद आपका जो है गुड्स मुस्कान ने पेमेंट सीधा थर्ड एंट्री 15 जनवरी रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान द फुल पेमेंट अंडर द कैश डिस्काउंट ऑफ 4% कैश डिस्काउंट पे मुस्कान से रिसीव करा है तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू मुस्कान। देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है बेटा इसको इस वर्किंग नोट में। जनवरी 15 कैश रिसीव जो मुस्कान से कैश रिसीव हुआ था दैट इज़ 1,60,000। 4,000 का कुछ उसको वापस हो गया तो सेल्स रिटर्न माइनस हो गया 4,000 तो बचा कितना 1,56,000। 1,56,000 कैश उसने पेमेंट करा है तो उसी आइटम पे कैश डिस्काउंट रखता है जितनी अमाउंट पेड होती है तो उस पर आपने 4% का कैश डिस्काउंट लगा दिया। 1,56,000 इंटू 4/100 तो 6,240 का कैश डिस्काउंट हो गया तो 1,49,760 ये इसकी प्राइस हो गई। तो जनवरी 15 कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू मुस्कान 1,49,760 डिस्काउंट अलाउड 6,240 टू मुस्कान 1,56,000 फुल सेटलमेंट में इसका हो गया तो ये इसका पेमेंट कर दिया। Now see question number 8. Give general entries for the following transaction in the books of Rajaram and Company. March 3 bought goods for cash of list price rupees 80,000 at 10% rate discount and 2.5% cash discount. ठीक है। फिफ्थ नंबर सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 1 लाख एट 15% रेट डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। 6 सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 20% रेट डिस्काउंट। 8 नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स एंड March 10 नागपाल सेटल्ड द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर द डिस्काउंट ऑफ 5%। सी बेटा March 3 bought goods for cash of the list price of rupees 80,000 at 10% rate discount and 2.5% कैश डिस्काउंट। सी March 3 बेटा गुड्स को परचेज करा है तो परचेज अकाउंट डेबिट 72,000 टू कैश अकाउंट 70,800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 18,000 गुड्स बॉट इन कैश एट द रेट ऑफ 10% रेट डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट। सी इसका बेटा मैंने ये वर्किंग नोट्स में शो करा हुआ है। गुड्स की जो लिस्ट प्राइस थी वो 80,000 थी, उस पर 10% रेट डिस्काउंट लग गया, 8,000 माइनस हो गया, 72,000 आ गई और उस पर 2.5% कैश डिस्काउंट 72,000 का कैलकुलेट हो गया 1,800 तो गुड्स का जो प्राइस आ गई 70,200 जिसमें गुड्स को आपने सोल्ड करा और डिस्काउंट रिसीव कर लिया 1,800 का। देन March 5 सी द नेक्स्ट एंट्री March 5 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज़ 1 लाख एट 15% रेट डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। गुड्स को सोल्ड करा है तो 15% रेट डिस्काउंट 3% कैश डिस्काउंट। सबसे पहले तो अभी देखिए लिस्ट प्राइस कितनी है आपकी 1 लाख है, रेट डिस्काउंट 15% माइनस हो गया 15,000 तो 85,000 आ गई इसकी प्राइस। उस पर आपका कैश डिस्काउंट आ गया एट द रेट 3% दैट इज़ 2,550 तो 82,450 की अमाउंट हमें परचेज वो सेल में आपका रिसीव्ड हुआ है। दैट कैश अकाउंट डेबिट 82,450 डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2,550 टू सेल्स अकाउंट 85,000। ठीक है तो 85,000 का सेल्स अकाउंट आ गया आपका। देन जनवरी 6 सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 50,000 एट 20% रेट डिस्काउंट। नागपाल क्या हो गया रिसीवर हो गया गुड्स का, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, नागपाल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और उस पर 20% रेट डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। और ये अभी आपका गुड्स में आपको कैश तो बोला नहीं है इसलिए क्रेडिट बेसिस पर हुआ है तो सेल्स कैश अकाउंट डेबिट सी सोल्ड गुड्स नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज़ 50,000 एट 20% रेट डिस्काउंट। तो नागपाल को आपने क्रेडिट पे सोल्ड कराया बेटा तो नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। 50,000 का 20% रेट डिस्काउंट माइनस कर दो, 50,000 का 20% रेट डिस्काउंट इज़ 10,000 तो 40,000 का गुड्स सोल्ड हो जाएगा। देन March 8 नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स 1/4 रिटर्न करा उसने तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल 1/4 गुड रिटर्न कर दिया। 40,000 का 1/4 इज़ 10,000 10,000 का गुड्स उसने क्या कर दिया है रिटर्न कर दिया है। देन नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5% कैश डिस्काउंट पर उसने सेटल करा है। सी लिस्ट प्राइस 50,000 माइनस 20% रेट डिस्काउंट 10,000 माइनस हो गया 40,000 आ गया। 1/4 गुड्स रिटर्न हो गए थे 40,000 के, 10,000 के गुड्स माइनस हो गए तो आपका 30,000 के गुड पेमेंट करना था, उसमें से 5% कैश डिस्काउंट मिल गया उसको 1,500 तो जो कैश रिसीव्ड हो गया दैट इज़ 28,500। ठीक है 28,500 1,500 डिस्काउंट अलाउड हो गया टू सेल्स अकाउंट। अगर हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो दैट इज़ डिस्काउंट अलाउड और जब गुड्स को परचेज करते हैं तो दैट इज़ डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाता है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 journalize the following transaction sold goods to Shruti of for 80,000 at 15% rate discount and 4% cash discount received 75% amount immediately through check।
परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा फॉर 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, 60% अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली। सी बेटा इसमें दो तरीके की एंट्रीज हो रही हैं, एक तो गुड्स को सोल्ड करा आपने पहले श्रुति को और फिर उसने पेमेंट दिया 75% का। सेम ऐसी मार्च 10 में आपने गुड्स परचेज करा रिचा से और फिर उसको पेमेंट दिया 60% का। तो इसमें आपकी एंट्रीज जब आपका इस तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं तो एंट्रीज आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। मीन्स मार्च 5 की ही दो एंट्रीज होंगी, एक तो उसकी सेल्स की होगी जो उसने क्रेडिट बेसिस पे करा है और फिर आपका जो पेमेंट रिसीव करा है। सी बेटा मार्च 5 व्हेन गुड्स सोल्ड तो श्रुति डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड टू क्रेडिट श्रुति एट 15% रेट डिस्काउंट। आपका 80,000 का गुड था, उसका 15% रेट डिस्काउंट माइनस हो गया आपका। सी 80,000 का गुड्स था, 15% उस पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया 12,000, तो 68,000 के गुड्स आपने सोल्ड कर दिए श्रुति को। देन उसने 75% पेमेंट रिसीव्ड इन कैश है एट 5% एट 4% कैश डिस्काउंट है। सी 68,000 का 75% कितना हो गया आपका 51,000, उस पर 4% कैश डिस्काउंट लगा दिया 2040, तो 48,960 का पेमेंट रिसीव हो गया। सीधा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू श्रुति 48,960, 2,040 का डिस्काउंट अलाउड हो गया टू श्रुति 51,000। ये एंट्री दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहले सेल की हुई आपकी क्रेडिट बेसिस पर और फिर पेमेंट रिसीव्ड हो गया उसकी होगी, ठीक है। देन मार्च 10 परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा फॉर 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट का आपकी इसकी एंट्री होगी, देखा बेटा ये नीचे वाली एंट्री पहले है। मार्च 10 परचेज अकाउंट डेबिट टू रिचा 54,000 परचेज गुड्स एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। और फिर आपने जो रिचा ने क्या करा है 60% अमाउंट आपने पेड कर दिया रिचा को इमीडिएटली, तो उसकी सेकेंड एंट्री है रिचा डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1620। कैसे डिस्काउंट रिसीव हुआ ये मैंने वर्किंग नोट्स में मेंशन करा हुआ है बेटा। परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस 60,000 की थी, ट्रेड डिस्काउंट लगा 10% तो 54,000 आ गया। 60% अमाउंट पेड बाय चेक, चेक के थ्रू पेड हो गई तो 32,400 आपके चेक के थ्रू पेड होना चाहिए। उस पर कैश डिस्काउंट हो गया 5%, दैट इज़ 1620। तो जो कैश पेड हुआ वो दैट इज़ 30,780, वो इसका कैश पेड हो गया। इज़ इट क्लियर? और आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। ये एंट्री कर लीजिएगा, इसमें नागपाल वाली एक एंट्री है, इसको आप लिख लीजिएगा इसमें। और मार्च 6 की एंट्री नागपाल की, दैट विल बी नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट पोस्ट कर लीजिएगा बेटा। थैंक यू। 3 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया, ट्राई करिए आपका, तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।